Good afternoon. सबसे पहले जो अभी वर्तमान अर्थव्यवस्था है उस पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा. फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्पीक on the black face of the economy. A government which has been rocked with scandals and uncertainty leaves behind a chapter which is a black chapter for the Indian economy. And possibly such a phase has never been witnessed ever in the history of independent India. The growth rate which touches the lowest in last 10 years is come down below 5%. It is hovering between 4.7% to 4.8%. The UPA government, the Congress government, has tom-tommed that it had an economist prime minister, a prime minister possibly who has been acclaimed and has the fame of being the only prime minister of any democracy or any government in the world who is an economist. And look what we have today. The industrial production has come down to an all-time record of lowest 1%, which has never ever been witnessed in this country. The mining sector has completely contracted. The growth has come down to 3.1%. And this is the slump in the mining sector overall. And actual mining in this country has come down by 8%, which is a disaster. The annual capital investment has slowed down to 3.5%. This is dangerous. The infrastructure, which possibly is possibly a milestone for all growth, has slumped to 2.3%, which has never ever been witnessed. Public spending has gone down to all-time low of 0.6%. Has ever the country ever witnessed such an economic slowdown or an economic recession? India's sovereign rating is under a complete threat now. We are not discussing it, but the fact remains that India's sovereign rating is absolutely under threat. As I said, the private spending has hit the all-time low. And foreign funds, FDI, which is very essential for growth for any nation, in last 1 year has come down by $10 billion. Last year we were 35 billion US dollars. It has come down to around 22 billion US dollars, a decline of 38%. There is a pressure on balance of payments. Are we coming back to a stage where the balance of payment position is completely going to head for a negative? And it has been reported that again rupee is the weakest against the dollar. The overall inflation has been hovering around 10%. The food inflation has been hovering around 20%. Price rise is a phenomenon which has been engulfing the nation. And here is a government which is the UPA government, Sonia Ji's government, Manmohan Singh's government, which is harping about Bharat Nirman. What a paradox. What a situation. The government has sent the economy in ICU and they are talking about their achievements. Never ever in the history the economy has been in such a state. The Bharatiya Janata Party would like to ask from the economist prime minister, what does he have to say about this economic situation which is prevailing in this country?
हमने ये सभी तथ्य इसलिए रखे हैं कि बहुत सारी चर्चाओं के बीच में देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं हो पा रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये स्थिति जो आज भारत के भीतर है, जो अर्थव्यवस्था है, ये अपने आप में भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय होगा जो एक काला अध्याय माना जाएगा आर्थिक व्यवस्था के लिए, और वो भी उसके कार्यकाल में जो दुनिया में किसी देश के लोकतंत्र के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जो आर्थिक विशेषज्ञ हो, और उसके कार्यकाल में ये स्थिति उत्पन्न हुई है। भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसी आर्थिक बदहाली देश ने कभी नहीं देखा था। औद्योगिक उत्पादन घट करके 1% हो गया है, जो पिछले 2 दशक में देखने को नहीं मिला। और मुझे लगता है कि जब औद्योगिक उत्पादन 1% पहुंचता है तो उसका सीधा सीधा संपर्क और संबंध रोजगार से होता है। खनन के क्षेत्र में जो गिरावट आया है, ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं रहा, और 3.1% खनन के क्षेत्र में गिरावट है। और खनन स्वयं पूरे क्षेत्र के अलग, खनन कार्यों में जो कटौती है वो 8% है। और निवेश जो संरचना में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वो पहली बार 2.3% आया है। पब्लिक स्पेंडिंग, जो आम खर्च है, जो सामान्य रूप से होता है, जो एक एक आदमी को प्रभावित करता है, वो 0.6% हो गया। और भारत के जो सॉवरेन रेटिंग जिसे कहते हैं, इसका हिंदी अनुवाद मेरे पास प्राप्त नहीं है, वो अब खतरे में है। और दुनिया भर में आज भारत के सॉवरेन रेटिंग को, जिसके आधार पर दुनिया भर में उसे मानक दिया जाता है कि किस देश में कितना निवेश बाहर के लोग कर सके, आज वो अपने आप में खतरे में है। विदेशी पूंजी जो भारत में आता था वो लगभग सूख चुका है, समाप्त हो चुका है। और आज लगभग $10 बिलियन यानी कि लगभग 38% की गिरावट है एफडीआई में, जो निवेश की आवश्यकता होती है किसी भी देश के विकास के लिए। आज रुपये की ताकत डॉलर के सामने सबसे कमजोर है। मुद्रास्फीति, जो सामान्य मुद्रास्फीति है, वो लगभग 10% है। और खाद्य सामग्रियों का जो मुद्रास्फीति है वो लगभग 20% है। महंगाई चरम सीमा पर है। और वैसी स्थिति में जहां कांग्रेस के हमारे साथी भारत निर्माण की चर्चा कर रहे हैं, भारत निर्माण के बयान कर रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं मनमोहन सिंह की सरकार ने, सोनिया जी की सरकार ने, राहुल जी की सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था को आईसीयू में पहुंचा दिया है। आज के तमाम परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ये सवाल तमाम राजनीतिक माहौल में, तमाम और विषय जो देश को घेर रहे हैं, हम इस विषय को इसलिए प्रासंगिक बनाना चाहते हैं कि देश एक खतरनाक आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विकल्प के रूप में, राष्ट्रीय प्रतिपक्ष के रूप में, हम अपना दायित्व समझते हैं कि देश के लोगों को आज के आर्थिक बदहाली के कारण इस देश के समक्ष रखें। मैं इसी विषय को लेकर के आज आपके बीच में आया था। इस बीच में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में कई चर्चाएं हो रही हैं, और हमने बार बार कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर हमारा कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, हमारा कोई भी दूसरा मत नहीं है। ऐसे कानून अगर देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए लाया जाता है, जो उनकी भलाई के लिए है, जो उनके पेट के भूख को मिटाने के लिए है, गरीबों के लिए है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इसका समर्थन देगी। लेकिन हमने ये विषय पर यह जरूर कहा है कि इस पर हम बहस करना चाहेंगे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के ऊपर कांग्रेस के भीतर ही विरोध है। उनके प्रमुख सहयोगी पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, जो स्वयं इस विभाग के मंत्री हैं, इस विभाग से संबंधित विभाग से मंत्री हैं, उन्होंने इस पर अपनी टिप्पणी दी है, अपना शंका जाहिर किया है। सरकार के भीतर एक मत नहीं है, और यूपीए की सरकार इसे आपाधापी में देश के सामने लाना चाहती है। आपको स्मरण होगा कि मनरेगा में जब यह सवाल उठा था कि देश में इस कानून को लागू होने पर देश में प्रत्येक गरीब को 100 दिन का रोजगार सृजन करने का मौका मिलेगा प्रत्येक वर्ष, और ये कहा गया था कि इस देश में हर हाथ को जिसको काम नहीं हो
उसे 365 दिन में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। आज जब इसकी ऑडिट की गई मनरेगा की योजना की, तो मुश्किल से 28 से 30 दिन तक सबसे सफल राज्यों में हुआ, यानी कि लक्ष्य से 70 दिन कम राष्ट्रीय औसत माना गया है। और हमें डर है कि सिर्फ राजनीतिक वाहवाही के लिए, देश के लोगों की चिंता कम है, राजनीतिक वाहवाही के लिए सरकार ये कदम उठाना यदि चाह रही है और इसके बहस नहीं करा रही। हमारा बहस के पीछे मूल उद्देश्य है कि सरकार इस अधिनियम के माध्यम से देश के साथ फिर से कहीं एक धोखा ना करे, हर पहलू पर चर्चा हो, और जो इस अधिनियम का अंतिम उद्देश्य है, हर गरीब तक भोजन पहुंचने का, वो पूरा हो सके। भारतीय जनता पार्टी इसे अपना दायित्व समझती है, अपनी जिम्मेवारी समझती है, और हम चाहेंगे कि इस बड़े कानून के एक एक पहल पर सदन के भीतर विमर्श हो, ताकि कांग्रेस पार्टी इसे फिर एक बड़े धोखे के रूप में देश की जनता के सामने न ला सके। ये हमारा दायित्व है, और इसीलिए हमने मांग किया है कि इसे अध्यादेश के रूप में, ऑर्डिनेंस के रूप में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को न लाया जाए, इस पर बहस हो। और यदि सरकार को बहुत जल्दी है, सरकार यदि चाहती है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करे, तो जो मॉनसून सत्र है, जुलाई माह से प्रारंभ होता है, उसे उसकी तिथि में बदलाव की जाए, उसे अगले माह या इस माह बुला लिया जाए। हम उससे सहमत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस अधिनियम पर बिना विमर्श के ये कानून बनाया जाए, हम इससे सहमत नहीं हैं। और हम अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी से, और हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने ये स्पष्ट किया है कि हम इसके पक्ष में हैं, और इसमें गहन अध्ययन के साथ हम बहस करना चाहेंगे, और इस कानून का लाभ हर व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए हम पहल करना चाहेंगे सदन के भीतर। कुछ समाचार नक्सलवाद के प्रभावित क्षेत्रों में जिस प्रकार से घटनाएं घटी हैं, हमने चिंता व्यक्त किया है, और हमने कहा है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 28 लोगों की हत्या की गई, जिसमें प्रमुख कांग्रेस के सदस्य भी थे, हमने चिंता भी व्यक्त किया, हमने अपनी संवेदना प्रकट की। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जाकर के परिवार वालों से संवेदना व्यक्त की, और हम समझते हैं कि नक्सलवाद किसी एक राज्य का मामला नहीं है, इट्स अ ट्रांस बाउंड्री इशू, ये कई राज्यों के बीच में है। लेकिन घटना के बाद कई सारे सवाल उठे। भारतीय जनता पार्टी इस पर हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी रूप से इस पर कोई अलग टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। तरह तरह के समाचार आ रहे हैं, एनआईए के माध्यम से जो समाचार आ रहे हैं, उसमें कई प्रकार के विषय उभर के आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने एक न्यायिक जांच बैठाई है, और एक निष्पक्ष जांच करने की उन्होंने जिम्मेवारी एक जज को सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी इंतज़ार करेगी कि सभी तथ्य प्रकाश में आए, और जो विषय उभर के आ रहे हैं, जिसे एनआईए के माध्यम से, ये अखबार समाचार पत्रों के माध्यम से आ रहा है, ये सभी विषय जांच के अधीन है। हम चिंतित हैं नक्सलवाद से। नक्सलवाद एक प्रांत में केंद्रित नहीं है, पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। आज देश के 85 जिले में लगभग 12 राज्यों में नक्सलवाद का प्रभाव दिख रहा है। ये स्वयं एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा को दिया था। इसलिए हम चिंतित हैं, और नक्सलवाद देश की समस्या है, और हम इसमें मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं, और सभी तथ्यों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है। इसके अतिरिक्त अगर कोई सवाल हो, जो बहुत सारे आपके मन में हो सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि वो सदन में क्या स्वरूप उभर के आता है, उस पर हम इसकी चर्चा करेंगे। Well, it's an issue which we can take up separately. I will not like to write a comment on it. Thank you. Any other issue, please? Sir, it's a very interesting question. The only fact which we'd like to highlight here is when the India government, we left this government, we left a stage where there was a progressive growth,
And looking back now, it seems that all what we saw in last 7-8 years prior to this UPA 2 was actually the policy framework and the track which was laid by the NDA government. That was the highlight of the economy of the successive government. That speed has been lost, that reform has been lost. And I think there's nothing much which has been added to the economy. So it's a lackluster, visionless, directionless, thoughtless economic order where the country is paying heavily for it. No, we are not opposing the special session. We are saying that streamline it. We would just want the monsoon session so that many other things which are there can be taken up. So it's better if we have that. If we have the preponing the monsoon session of Parliament, sir. मजूमदार जी हाँ. जहाँ एक और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वाले वहाँ पर ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा, वहाँ के विधायक इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं सामूहिक रूप से. यहाँ दूसरी ओर केंद्र में आप खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित कराने में सहयोग करा रहे हैं. ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कुछ विषयों पर देश के भीतर हमने अपने मंतव्य जाहिर कर दिया है और सभी राज्यों को स्वायत्तता है, अपने अधिकार है. जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सरकार हैं उनके फेडरल अथॉरिटी है. और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले की घटना में भी जिन माओवादियों के बारे में चर्चा की गई है वो तेलुगु बोल रहे थे. इसलिए किसी एक प्रांत को जिम्मेवार ठहराना उचित नहीं है. ये कई राज्यों का मसला है, इसे मिलजुल करके करना पड़ेगा. लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कांग्रेस के नियत पर और नीति पर. जिस प्रकार से 2010 में कांग्रेस के एक महासचिव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने आरोप लगाया था तत्कालीन गृह मंत्री पर. तो जो नियत है, जो सोच है कांग्रेस पार्टी की, वो स्पष्ट नहीं है माओवाद के मामले को लेकर के. इसलिए कई सारे सवाल खड़े होते हैं कांग्रेस के नियत और नीति पर जहां तक माओवाद का सवाल है. I think we need I think sufficient clarification has been given on this. Mr. Shivraj Singh Chauhan, who was present in the state executive of the BJP in Madhya Pradesh at Gwalior, said that Mr. Lal Krishna Advani, while making his speech, had praised all the BJP-ruled chief ministers, be it Narendra Modi, be it Raman Singh, be it Shivraj Singh Chauhan, be it Manohar Parrikar, all had been praised. And in doing so, I think like a statesman, Mr. Lal Krishna Advani carried a positive word for every chief minister. And it's a very natural practice that when you visit a particular state, where the entire state executive or the council is sitting there, you are expected to boost the workers and the and the state executive members who expect a lot for the leadership. So I think it's not in isolation. There is a complete misrepresentation or a misinterpretation, and I think it's not fair to have attributed this aspect to the speech of Mr. Lal Krishna Advani. Thank you. देखिए, my friends in the Congress party, my spokesperson and others who have become ministers now, have actually run out of words and run out of ideas. And they are a part of the government which is clueless as to the economy, as to government, as to what is happening there. And this is a government, the spokesperson of such party who are neck deep in corruption would certainly make a distress call. These are distress statements trying to divert the attention from the core issue which this government is facing, where the Prime Minister himself is in a dock on charges of corruption, where he manipulates the government and the CBI. So there are so many things. A government in distress, the spokesperson in distress, they're absolutely clueless. They don't know what to say. It's quite expected from them. The credibility of the government is over. So is the credibility of the spokespersons of the Congress party. And nothing better is expected from them. And this is what the BJP would like to say when they make a remark about the BJP.
देखिए, कांग्रेस के हमारे मित्र प्रवक्ताओं को शब्दों का अभाव हो गया है, विचारों का अभाव हो गया है, सोच का अभाव हो गया है, दिशा का अभाव हो गया है, क्योंकि वो परेशान है। वो परेशान है भ्रष्टाचार के आरोप से, वो परेशान है अव्यवस्था से, वो परेशान है जिस प्रकार से देश में अराजकता है, वो परेशान है कि आर्थिक अव्यवस्था है। तो इस अराजकता की स्थिति में उनके पास शब्दों का अभाव है। और वैसी स्थिति में जिस सरकार की अपनी विश्वसनीयता समाप्त हो गई हो, जिस सरकार में देश के प्रधानमंत्री स्वयं को अपने आरोप के घेरे से बचाने के लिए जेपीसी का उपयोग करके अपना नाम बाहर निकालना चाह रहे हो, जिस सरकार में कोयले घोटाले में देश के प्रधानमंत्री के स्वयं का नाम उसमें आ रहा हो और सीबीआई का उपयोग और हलफनामे बदलवाने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के उस पार्टी के प्रवक्ताओं से इससे बेहतर उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो डिस्ट्रेस में है, वो उन्हें पता नहीं है कि क्या करें। और वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जिस स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी में है, उसमें उनके प्रवक्ताओं से इससे बेहतर बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। सर, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के तौर पर, दूसरे पर रमन सिंह, तीसरे पर, क्या इस तरीके का सीक्वेंस भी है पार्टी? मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति दूसरे की प्रशंसा करे तो उसका बड़प्पन होता है। विकास भदौरिया। मिस्टर राजीव, जी, पूछिए सवाल। we'll wait to see what the government proposes first. नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल। जी जी, मैंने कहा स्पष्ट रूप से, मैं इसके विषय में स्पष्ट रूप से, ये सब अभी संदर्भ का विषय नहीं है। हाँ, मिस्टर ठाकुर। देखिए, मैं बहुत क्रिकेट का जानकार नहीं हूँ, हालांकि मैं बचपन से क्रिकेट देखता रहता हूँ और भारत के संसदीय टीम का कमेंटेटर भी हूँ। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ और उस पर कार्रवाई हो रही है। देश के लोगों का गुस्सा है, उसमें मूल संशोधन की आवश्यकता है, इस चीज़ों पर रोक लगे। और ये निजी अपराध है, प्राइवेट संस्थाओं का अपराध है। लेकिन उससे बड़ा अपराध इस देश के सामने, आप सबके सामने, सरकार का भ्रष्टाचार का है, जो सरकारी खजाने से लाखों करोड़ की लूट हो रही है। हमारे जैसे लोगों की चिंता है कि इस क्रिकेट के मामले में और जिस प्रकार से इस विषय को रखा गया, निश्चित तौर से हम सहमत हैं, भ्रष्टाचार है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि क्रिकेट के इस भ्रष्टाचार में देश के कांग्रेस पार्टी और सरकार के बड़े भ्रष्टाचार कहीं छिप ना जाए, हमें इस बात का डर है। Well, I understand IPL, these are privately owned and organized matches where cheating has taken place, fixing has taken place. It's in fact, it's highly deplorable. A private man and individuals can't be cheated in, for especially those who love cricket and love sports. But having said that, action should be taken against. There are laws for it. The criminal law should take care of it. The state should take care of it. But my only concern is that this corruption, which is possibly a corruption of an individual or an organization which is non-governmental, whether there has been an attempt to shadow through this or offset the national corruption, the corruption which has been from the public exchequer, where the government itself is involved. My concern is whether we can offset the corruption issue of cricket with the corruption with the national exchequer, the government. It's a matter of concern. And having said that, we have to keep in mind that the government is involved in a far bigger and a more astronomical corruption than what we are seeing in IPL. Thank you.
मैं महासचिव बन गया हूँ, मैं थोड़ा सा कम बोलूँगा, तो अब मुझे अनुमति दीजिए, मैंने बहुत सवालों को उत्तर दिया। देखिए, हम सब वाकिफ़ हैं उस परिस्थिति से। हम देख रहे हैं कि झारखंड में क्या होने वाला है। सही वक्त पर हम लोग आपको उसका उत्तर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलिए। It's a matter of shame, deep concern. How can you ever, and it's no less than whatever crime against women could be. It's we don't have words to express. It's ghastly. इससे दर्दनाक क्या हो सकता है कि किसी बच्ची की मौत एसिड के अटैक से हो जाए और वो दम तोड़ दे। ये घृणित है। इसकी किसी भी शब्दों में इसका भर्त्सना किया जाए वो कम है। मैं समझता हूँ कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल किसी रूप में सरकार को, चाहे जिसकी भी सरकार हो, बख्शना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।